Welcome to the last part of chapter triangles, and today's topic and the last exercise is everything to do with inequalities of triangle. Inequalities of triangle basically means some rules of triangle. You have to copy this entire sheet. You pause the video and copy whatever is written on this sheet, because now I'm going to explain it, and when I explain there will be a lot of litada on this slide. So copy it right now and then understand it. The first thing to understand is when the name of the triangle is ABC, तो कोई मुझसे पूछे that what is the name of this side, what will I say? I will say the name of this side is AB. What is name of this side? BC. And what is the name of this side? CA. तो AB, BC और CA तीन sides है, but instead of calling them AB, BC, CA, we can call them small c, small a and small b also. तो साइड AB को मैं छोटा c बुला सकता हूँ, BC को मैं A बुला सकता हूँ और CA को मैं B बुला सकता हूँ. So, small ABC are the three sides of triangle ABC, and the rules which apply are दो साइड का टोटल, ये A प्लस बी मतलब दो साइड है, दो साइड का टोटल तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होता है. A plus B is more than C, B plus C is more than A, and C plus A is more than B. Let me take the simplest example of an equilateral triangle. और equilateral triangle में तीनों साइड सेम होती है. So triangle ABC 6 6 6, तो छोटा a मतलब BC 6, छोटा b मतलब AC 6, छोटा c AB मतलब 6. Do you think A plus B is more than C? Yes, 6 plus 6 12 is more than 6. B plus C is more than A? Yes, C plus A is more than B. Yes, किसी भी दो का टोटल करो वो तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, वरना वो ट्राइंगल ही नहीं है. Another example I will give you which will explain it more. पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, तो सबसे कॉमन और सबसे छोटी पाइथागोरस ट्रिपलेट है 3 4 5. So this side is 3, this is 4, then this is 5. If I call this triangle as ABC, तो छोटा a मतलब BC 4, छोटा b मतलब CA 5, छोटा c मतलब AB 3. 3 plus 4 is more than 5. True or false? True. 3 plus 5 is more than 4. True. 4 plus 5 is more than 3. True. मतलब किसी भी दो साइड का टोटल तीसरी साइड से बड़ा होता है. And then there are 3 more rules. कोई भी दो साइड का डिफरेंस, कोई भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है. मतलब डिफरेंस मतलब 6 minus 6 0, वो छोटा नहीं है तीसरी साइड से. यस, तो सब में 6 minus 6 is less than the third side. It's obvious in this triangle 5 minus 4 less than 3, 4 minus 3 less than 5, 5 minus 3 less than 4. किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से कम ही होता है.
Remember that. This is called inequalities of triangle. But there is something special which is drawn here. What is this? ये तो दो डंडी है. This is called modulus. मॉड्यूलस का मतलब है जब तुम दो साइड का डिफरेंस निकाल रहे हो तो पॉजिटिव डिफरेंस निकालना. दो साइड का जब डिफरेंस निकाल रहे हो तो द डिफरेंस हैज टू बी पॉजिटिव डिफरेंस. मतलब 5 - 4 1, 4 - 3 1, 5 - 3 2 आर लेस देन 3 5 and 4. बट राइट एंगल ट्राइंगल 3 4 5 में डिफरेंस निकालो तो 3 - 5 भी तो डिफरेंस हो सकता है. बट 3 - 5 इज -2. बट व्हेन यू पुट मॉड्यूलस तो वो -2 2 बन जाता है. मॉड्यूलस के अंदर हर एक नंबर पॉजिटिव कहलाया जाता है. एनीवेज, दिस इज inequalities of triangle. 6 rules. Sum of two sides is more than third. Difference of two sides is less than the third. Second rule, smallest angle की opposite side shortest होती है. किसी भी triangle में अगर 3 एंगल दिए हैं 30, 50, 110, तो 30 सबसे छोटा साइड है, छोटा एंगल है. 30 इज द स्मॉलेस्ट एंगल. तो स्मॉलेस्ट एंगल के सामने का जो साइड है वो हमेशा स्मॉलेस्ट होता है. कंपल्सरी. स्मॉलेस्ट एंगल के सामने का साइड स्मॉलेस्ट. बाय हार्ट दैट कॉन्सेप्ट. और बिगेस्ट एंगल 110. तो बिगेस्ट एंगल के सामने का साइड हमेशा बिगेस्ट होता है या लार्जेस्ट होता है. और मीडियम के सामने मीडियम. छोटे एंगल का सामने का साइड छोटा, बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा. इसका उल्टा भी पॉसिबल है. बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा, छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा. फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody tells me that which angle is which for triangle A B C, 6 centimeter, 7 centimeter, 8 centimeter, and the angles given are 80, 50, 80, 60, 40. तो क्या लॉजिक लगाओगे? सबसे बड़ी साइड 8 के सामने का एंगल सबसे बड़ा 80. सबसे छोटी साइड 6 के सामने का एंगल सबसे छोटा 40. और मीडियम साइड 7 के सामने का एंगल मीडियम, ना छोटा ना बड़ा, 60. रिमेंबर दिस लॉजिक, अ कॉन्सेप्ट. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट जो ये सम्स में काम आएगा इज, अगर m और n का टोटल 100 है. चलो मैं बहुत इजी एग्जांपल देता हूं. कुशान की एज 37 है और उसके पापा की एज 63 है. तो व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ कुशान एंड पापा? 100. इफ कुशान प्लस पापा इज 100, कैन आई से कुशान इज लेस देन 100? ऑब्वियसली. टोटल 100 है, मैं अकेला थोड़ी 100 हूं, मेरी एज 100 से कम है. एंड इफ Kushan plus Papa is 100, I can say Papa is also less than 100.
बिकॉज 63 इज लेस देन 100। तो कभी भी दुनिया में कोई भी कहे चुन्नू के पास x रुपीज, मुन्नू के पास y रुपीज और दोनों का मिला के 250 रुपीज है, तो इस इक्वेशन का कंक्लूजन है देयरफॉर चुन्नू के पास 250 से कम रुपए है, मुन्नू के पास भी 250 से कम रुपए है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, h प्लस पी 40, तो h लेस देन 40, p लेस देन 40 बहुत काम आएगा। गुड। वन मोर कॉन्सेप्ट, 3 चीज सीखी है, चौथी और लास्ट चीज, ड्रॉ अ ट्रायंगल and name it ABC. Now call this as IA, call this as IB, call this as IC. I A I B I C लिखो इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल मतलब 3 नॉर्मल एंगल्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते रहते हैं, एंगल ए बी सी, बट दे आर इनसाइड, देयरफॉर आई फॉर इंटीरियर। अब extend BC, extend CA and extend AB. Do you see a new angle formed here, here and here? This is EC, this is EA, this is EB. Exterior angle A, एक्सटीरियर बी, एक्सटीरियर सी, क्योंकि वो ट्राइंगल के बाहर है। ड्रॉ करो और लिखो, नाउ एक्सटेंड AC, एक्सटेंड BA, एक्सटेंड CB। तो यही ब्लैक एंगल के साथ यहां पे 180 डिग्रीज वाला एंगल बन रहा है। And these are also exterior angles, exterior B, ये तो खोटा है, यहां पे आएगा एक्सटीरियर A, एक्सटीरियर C। मतलब लिखो, ट्राइंगल हैज 3 इंटीरियर एंगल्स, triangle has 6 exterior angles. इंटीरियर एंगल्स को मैं ब्लैक हाईलाइट करूं तो 3 इंटीरियर एंगल बनते हैं, इंटीरियर एंगल ए, इंटीरियर एंगल बी, इंटीरियर एंगल सी। इंटीरियर एंगल एबीसी के पड़ोस में 2 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ऐसे करो तो लीनियर पेयर, इंटीरियर एक्सटीरियर, स्ट्रेट लाइन, ब्रांच। डू यू सी 180? ये भी है जिसमें ये स्ट्रेट लाइन और ब्रांच 180, स्ट्रेट लाइन, ब्रांच 180, लीनियर पेयर, ऑल आर एक्सटीरियर एंगल्स। और हर एक एक्सटीरियर के सामने की तरफ एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है, उसको भी एक्सटीरियर एंगल ही बुलाते हैं। ये
anyways, so you have written interior angle I ABC, exterior angle ABC. There are 3 interior angles and there are 6 exterior angles. पहला फॉर्मूला लिखो, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180, क्योंकि दे आर ऑलवेज लीनियर पेयर. इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज 180. और दूसरा, इंटीरियर ए प्लस इंटीरियर बी इज एक्सटीरियर सी है. हाँ, दूसरा लिखो, इंटीरियर बी प्लस इंटीरियर सी इज एक्सटीरियर ए. इंटीरियर ए प्लस इंटीरियर सी इज एक्सटीरियर बी. कहने का मतलब, कोई भी 2 इंटीरियर एंगल्स का टोटल करो तो वो तीसरा एक्सटीरियर एंगल बन जाता है. एंड टू प्रूव दिस, ड्रॉ अ स्मॉल ट्राइंगल एंड राइट द 3 एंगल्स 40, 60, 80. अब extend this line and find its linear pair. Extend this line, find its linear pair. Extend this line, find its linear pair, which is very easy. 60 का linear pair 180 minus 60 120. 80 का linear pair 100 और 40 का linear pair 140. नाम दे दो A, B, C. Let's check. इंटीरियर एंगल A प्लस इंटीरियर B मतलब 40 प्लस 80 120. वो तो एक्सटीरियर C है, ये देखो 120. इंटीरियर B प्लस इंटीरियर C मतलब एंगल B प्लस C मतलब 80 प्लस 60 140. वो तो एक्सटीरियर A है, ये देखो 140. एंड इंटीरियर A प्लस इंटीरियर C मतलब एंगल A प्लस C 40 प्लस 60 100. वो तो एक्सटीरियर B है 100. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, कि कोई भी 2 इंटीरियर का टोटल इज इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर. बट इसमें से 2 बच्चे, इसमें से 2 बच्चे और इसमें से 2 बच्चे पैदा होते हैं. इंटीरियर A प्लस इंटीरियर B इज एक्सटीरियर C, तो कैन आई से इंटीरियर A इज लेस देन एक्सटीरियर C एंड इंटीरियर B इज लेस देन एक्सटीरियर C, बिकॉज लास्ट स्लाइड में हमने समझा ये, अगर m प्लस n 100 है तो m इज लेस देन 100, n इज लेस देन 100. ये कंक्लूजन बहुत कम में आएगा. कुशान प्लस पापा इज 100, तो कुशान लेस देन 100, पापा लेस देन 100. वैसे इंटीरियर पर इंटीरियर इज एक्सटीरियर, तो इंटीरियर लेस देन एक्सटीरियर. दूसरे इक्वेशन में इंटीरियर B इज एक्सटीरियर A, इंटीरियर C इज लेस देन एक्सटीरियर A, interior A is less than exterior B, interior C is less than exterior B. Write these 6 things down also. They will be very helpful when you solve the sums. तो इतने कॉन्सेप्ट्स है इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट. छोटी साइड बड़ी साइड, छोटा एंगल बड़ा एंगल का कॉन्सेप्ट. Sum of 2 things is 100, both are less than 100 का concept, and total is more than third side, difference is less than third side का concept. If you have written all this and have tried to understand a bit, then you are ready for solving exercise 7.4. But पहले example 9 solve करते हैं.
Let's draw our own figure. D is a point on side BC of triangle ABC. Triangle A, B, C. D is a point AD. D is a point on BC. AD is equal to AC. AD, AC, same. Show AB is more than AD. AB AD से बड़ा है प्रूव करना है, तो मैं यहां पे 3 डैश लगाता हूं या 4. आई वॉन्ट टू शो दैट AB AD से बड़ा है और AD AC सेम है. टू शो दिस आई नीड टू शो कि बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा है, एंगल D, और ये साइड के सामने का एंगल छोटा है. और वो कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं. बट फिलहाल आई वॉन्ट टू लुक एट वॉट द डायग्राम ऑफ टेक्स्ट बुक सेज, बिकॉज इट इज बेटर दैट वी लर्न थ्रू टेक्स्ट बुक डायग्राम. Example 9. Okay, the diagram is almost similar, but still we would use this diagram. AD is equal to AC has been already marked, as you can see. AD, AC same, और AB बड़ा है ये प्रूव करना है. Write down, first draw the textual figure and write down step number 1. In triangle ADC, AD is equal to AC given. ये दो. Therefore, angle ACB is equal to angle ADC, आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब दो साइड सेम, तो दोनों साइड के सामने का एंगल सेम. These two angles are same. What's the name of this angle? ADC, जो मैंने यहां पे लिखा है. What's the name of this angle? ACD या ACB, जो मैंने यहां पे लिखा है. सो दो साइड सेम, तो सामने के एंगल सेम. मार्क इट नीटली एज 2 डॉट्स ऑफ सेम साइज. Therefore, these two angles are same. Now shift your focus to another triangle. In triangle ABD, and you have to draw that the way it looks. It looks kind of like this. A, B, D, C. और यहां पे एक ब्लैक डॉट है, ये वाला. Can't I say that this is exterior angle and this is an interior angle? So triangle ABD में can I say angle ABD, नहीं, ABC is less than angle ADC. Reason, interior angle is always less than exterior angle, जो मैंने तुमको लिखवाया है तुम्हारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज या कॉन्सेप्ट्स में. सो ABC is less than ADC because interior angle is less than exterior angle in any triangle. एक अकेला इंटीरियर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर से हमेशा कम होता है.
बट एडीसी तो एसी भी है, सो एंगल ए बी सी इज लेस देन, ये चेंज हो गया और बन गया ए सी बी फ्रॉम 1, तो इसको 1 बुला लेने का। अब एबीसी एसीबी से कम है, गो बैक टू द मेन ट्राइंगल एंड थिंक, एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी से कम है, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटू के सामने वाली साइड ए सी कम है बड़े के सामने वाली साइड ए बी से, सो ए सी इज लेस देन ए बी, बट ए सी ए डी तो सेम है, तो ए सी बन गया ए डी इज लेस देन ए बी, बिकॉज ए सी ए डी सेम है। सम ओवर, लुक एट व्हाट वी हैड टू प्रूव, ए बी ए डी कंपेयर करना था, ये रहा, ए डी इज लेस देन ए बी या ए बी इज मोर देन ए डी, बात तो एक ही है। 2 बार देखना पड़ेगा वरना समझ में नहीं आएगा। दिस एक्सरसाइज सम्स हैव नथिंग टू डू विद द अर्लियर चैप्टर, तो आज के जितने भी सम्स है यू विल हैव टू अंडरस्टैंड देम ऑन इट्स ओन मेरिट। ऑन इट्स ओन मेरिट मतलब पहले के साथ कोई लेना देना नहीं है, आज से नई शुरुआत करनी पड़ेगी समझने की, क्योंकि ये टॉपिक एकदम अलग है। Therefore, I will revise this sum once again in a shorter possible manner. Given जो दोनों काम में आता है, पहला गिवन है AD इज इक्वल टू AC, therefore क्या, therefore एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये रहा। बस टू प्रूव क्या था, ए बी मोर देन ए डी, ए बी ए डी से बड़ा है। प्रूफ कहां से शुरू करते हैं, गिवन से, ए डी ए सी सेम, इसलिए एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। फिर हम सडनली अपना फोकस शिफ्ट करते हैं टू अनदर ट्राइंगल ए बी डी, जिसमें ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल या इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है दैट एंगल ए बी सी मतलब इंटीरियर एंगल इज लेस देन ए डी सी एक्सटीरियर एंगल, बट ए डी सी तो ए सी बी है, तो ए बी सी इज लेस देन ए सी बी, और अगर ए बी सी ए सी बी से कम है तो एंगल ए बी सी के सामने वाली साइड ए सी ए सी बी के सामने ए बी से कम है, और अगर ए सी ए बी से कम है तो ए सी ए डी सेम है, देयरफॉर इसको ए डी बना दो, ए डी इज लेस देन ए बी, प्रूव्ड। Exercise 7.4 first sum, show that in right angle triangle the hypotenuse is the longest side. Draw a 90-degree triangle. Name it A, B, C, where B is 90. बहुत मजेदार है। हमें ओके गिवन ट्राइंगल ABC, एंगल B 90, to prove hypo is longest side. Proof देखो, it's very easy and interesting. Angle A plus B plus C is 180, which is called angle sum property.
किसी भी दुनिया के ट्राइंगल में 3 एंगल का टोटल 180 होता है, बट बी 90 है, और सामने 90 माइनस हो जाएगा तो a प्लस सी इज 90। और कॉन्सेप्ट में सिखाया, अगर कुशान और उसके पापा का टोटल 90 है तो कुशान इज लेस देन 90 एंड पापा इज ऑल्सो लेस देन 90। याद आया कुछ? और अगर a इज लेस देन 90 बट 90 तो एंगल b है, और c इज लेस देन 90 लेकिन 90 तो एंगल b है। अब सोचो, a b से छोटा है, c b से छोटा है, देयरफॉर एंगल b इज लार्जेस्ट। और अगर एंगल b लार्जेस्ट है, देयरफॉर ac इज लार्जेस्ट, क्योंकि उसका ऑपोजिट साइड है। और AC लार्जेस्ट मतलब हाइपो इज लार्जेस्ट, सम ओवर। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। 3 एंगल का टोटल 180, 2 का टोटल 90, तो दोनों 90 से कम है, बट 90 तो B है, दोनों B से कम है, मतलब B सबसे बड़ा। और B अगर सबसे बड़ा तो B के सामने की साइड AC सबसे बड़ी, और AC सबसे बड़ी तो हाइपो इज द लॉन्गेस्ट साइड। प्रूव्ड। Sum number 2. Figure 7.8. Side ABAC of triangle ABC are extended to point P and Q. देखो जो बोल रहे हैं वो ड्रॉ करते हैं। Side AB is extended to AP, AC is extended to AQ of triangle ABC. ठीक है। Also PBC is less than QCB. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लेस कैसे दिखाने का, देर इज नो ऑफिशियल ऑप्शन इन टेक्स्ट बुक और डाइजेस्ट और प्रैक्टिस बुक और एनीवेयर। तो मैं जो करने वाला हूं वो मेरा इन्वेंशन है। एंगल पीबीसी इज लेस देन क्यूसीबी, पीबीसी इज लेस देन क्यूसीबी, मैं ऐसे दिखाता हूं। Isn't it very clear that this is a small dot and this is a big dot? This tells me कि ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा। To prove AC is more than AB, AC बड़ा है AB से, ये प्रूव करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट with given triangle ABC, P belongs to AB, Q belongs to AC। या पूरा क्वेश्चन कॉपी करो या खुद लिखो, इट डजेंट मैटर। और सबसे इंपॉर्टेंट गिवन PBC लेस देन QCB, एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। टू प्रूव AC मोर देन AB। प्रूफ के लिए ये लीनियर पेयर लिखो, ये वाली लीनियर पेयर नहीं, स्टार्ट फ्रॉम गिवन ओनली। PBC लेस देन QCB, एंगल PBC is less than angle QCB। दोनों में जब माइनस लगाऊंगा तो लेस देन बिकम्स मोर देन, माइनस एंगल PBC इज मोर देन माइनस एंगल QCB। रीजन, एड माइनस ऑन बोथ साइड, बस। अब 180 आगे लगा रहा हूं, बट दिस इज लाइक एडिंग 180, आई एम नॉट चेंजिंग द साइन, तो ये ऐसे ही रहेगा, विच इज कॉल्ड एड 180। नाउ थिंक 180 माइनस PBC मतलब क्या? ये है PBC, तो 180 माइनस PBC उसका लीनियर पेयर होता है ABC, एंगल ABC।
और 180 माइनस QCB मतलब क्या? QCB ये है, 180 माइनस QCB मीन्स उसका लीनियर पेयर ACB। रीजन लीनियर पेयर। अब ये जो कह रहा है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो। ABC मोर देन ACB, ABC मोर देन ACB। तो मोर एंगल के सामने की साइड मोर, छोटे एंगल की सामने की साइड छोटी। ABC के सामने AC, ACB के सामने AB, टू प्रूव ओवर। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो छोटू का लीनियर पेयर बड़ा, बड़े का लीनियर पेयर छोटा, बड़े के सामने बड़ी साइड, छोटे के सामने छोटी साइड, सम ओवर। और लीनियर पेयर बनाने के लिए दिस इज द प्रोसीजर। पहले माइनस माइनस ऐड करो और फिर 180 180, और जब माइनस ऐड करोगे तो ये साइन उल्टी हो जाएगी, ध्यान रखना। गिवन एंगल B लेस देन एंगल A, एंगल C लेस देन एंगल D। मेन फिगर ड्रॉ करो और ये इंफॉर्मेशन को अंदर इनकॉर्पोरेट करो। B लेस देन A इज शोन लाइक दिस, B लेस देन A, एंड C लेस देन D मतलब C लेस देन D, D बड़ा है। बड़े के सामने बड़ी साइड, छोटू के सामने छोटी साइड, बड़े के सामने बड़ी साइड, छोटू के सामने छोटी साइड। ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बट विदाउट ड्रॉइंग इट हियर। पहले टू प्रूव देख लो। टू प्रूव AD इज लेस देन BC, बहुत ही इजी सम है। लुक एट द प्रूफ। AD को छोटा और BC को बड़ा प्रूव करना है। AD तब छोटा होगा जब ये दोनों छोटे हैं, और BC तब बड़ा होगा जब ये दोनों बड़े हैं, जो एक्चुअल में है। सो इट्स अ वेरी इजी सम। प्रूफ में क्या लिखेंगे? पहले इन ट्राइंगल BAOB एंड ट्राइंगल COD, angle B less than angle A given, and angle C less than angle D given। ये ट्राइंगल में ये छोटा ये बड़ा, ये ट्राइंगल में छोटा बड़ा। अगर B छोटा है तो B के सामने OA है AOB में, और A के सामने OB। C is smaller than D, तो C के सामने OD है और D के सामने OC इन दिस ट्राइंगल। इसको 1 करो और इसको 2 एंड ऐड बोथ। लिखो एडिंग 1 and 2 means OA plus OD is less than OB plus OCI, and OA plus OD मतलब AD, OBOC मतलब BC, sum over AD is less than BC। वेरी इजी सम। बड़े के सामने बड़ी साइड, छोटू के सामने छोटी साइड, छोटू के सामने छोटी साइड, बड़े के सामने बड़ी साइड। दो बड़े का टोटल बड़ा, दो छोटे का टोटल छोटा, AD लेस देन BC। ABCD are respectively smallest and longest side of quadrilateral. AB smallest, CD longest,
क्वाड्रिलैटरल में कोई रूल अप्लाई नहीं होता। दिस चैप्टर इज कॉल्ड ट्राइंगल्स एंड आज के लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट तुमने लिखे वो ट्राइंगल्स के लिए है और ये क्वाड्रिलैटरल है। देयरफॉर ये मत बोलना कि छोटे के सामने का एंगल छोटा, क्योंकि छोटी साइड के सामने बड़ी साइड है, कोई एंगल नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रिलैटरल नहीं है। सो फर्स्ट थिंग ड्रॉ द फिगर, सेकेंड थिंग राइट गिवन AB smallest, CD longest. To prove angle A is more than angle C, angle B is more than angle D. अब देखो प्रूफ। प्रूफ में पहले A मोर देन C पे फोकस करते हैं। A मोर देन C मतलब A बड़ा है और C छोटा, ये प्रूव करना है। हाउ विल यू प्रूव? इज बाय जॉइनिंग AC। बहुत ध्यान से देखना, जॉइन AC, ठीक है। AB स्मॉलेस्ट है, तो AB लेस देन BC, AB BC से छोटा है, तो AB के सामने का एंगल ACB इज लेस देन BC के सामने का एंगल BAC। समझ में आया? क्वेश्चन में कहा था क्वाड्रिलैटरल की चार साइड में से सबसे छोटी AB है, मतलब AB BC से छोटा है, और AB BC से छोटा है तो ACB BAC से छोटा है। बट दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर ट्राइंगल विच यू हैव टू राइट डाउन। आइडियली यहां पे लिखना चाहिए था फॉर ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के लिए ये मिला। अब जॉइन AC, ठीक है, दो बार लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, AC ज्वाइन कर दिया। तो ट्राइंगल ADC के लिए DC लार्जेस्ट है, तो AB BC CD DA में CD is the largest, तो CD is more than AD, CD is more than AD। ट्राइंगल ADC में CD बड़ा है तो CD के सामने का एंगल बड़ा है, एंगल DAC is more than AD के सामने का एंगल छोटा है DCA। इसको उल्टा करके लिख दू बस, एंगल DCA is less than angle DAC। I've just changed the position। Now you have to add 1 and 2। इसको 1 और 2 नाम दो और ऐड करो एंगल ACB प्लस DCA इज लेस देन, क्योंकि ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है। पता चला क्यों फ्लिप किया था यहां पे, दिस वाज मोर देन, उसको लेस देन बना दिया, BAC प्लस DAC। बट अब दिमाग लगाओ, ACB प्लस DCA है किधर? ACB प्लस DCA, ACB प्लस DCA, ये तो पूरा एंगल C है। और BAC प्लस DAC, BAC प्लस DAC तो पूरा एंगल A है। Hence proved एंगल C is less than एंगल A, मतलब A is more than C प्रूव हो गया। क्या किया? एक लाइन ज्वाइन की और दोनों ट्राइंगल में छोटा बड़ा का रिलेशनशिप सेट किया।
ये जो सेकंड है वो सिर्फ सिमिलरली करके लिखने का होता है. सिमिलरली वी कैन शो एंगल बी मोर देन एंगल डी बाय ज्वाइनिंग. इसमें ए सी ज्वाइन किया था, इसमें तुम ज्वाइन करोगे बी डी. एंड आई एम गोइंग टू शो यू वंस हाउ टू प्रूव बी मोर देन डी. बी मोर देन डी करना है तो कैसे करोगे? If you want to write down, you can write down. If you want to just see, you can see. This is the smallest. This is the largest. My target is B less than D. Less than था या more than? B more than D. My target is to prove B more than D. Where will I start? By joining BD. When I join BD, I get two triangles, something like this. D A B, D C B. Longest, shortest. तो छोटू ट्राइंगल में ए बी इज लेस देन ए डी, तो ए बी के सामने एंगल ए डी बी इज लेस देन ए बी डी. फिर यहां पे ये लॉन्गेस्ट है तो बी सी और सी डी में सी डी बड़ा है, बी सी स्मॉलर देन सी डी बिकॉज सी डी इज लॉन्गेस्ट, इट इज ऑलवेज ग्रेटर. और BC के सामने का एंगल BDC, CD के सामने DBC. ADB लेस देन ABD, ADB लेस देन ABD, BDC लेस देन DBC, BDC लेस देन DBC. ऐड कर दो, दो छोटू का टोटल छोटा, दो बड़ू का टोटल बड़ा. ADB प्लस BDC is less than ABD plus DBC. Hence, angle D less than angle B. उल्टा प्रूव हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, B मोर देन D या D लेस देन B सेम होता है. Question 5. PR more than PQ. How do you show in the figure? PR 4 लाइन, PQ 1 लाइन. PR more than PQ. PS bisects QPR. PS bisects QPR मतलब ये दो एंगल सेम. QPR, हाँ ये दो एंगल सेम. प्रूव दैट PSR इज मोर देन PSQ. PSR बड़ा है PSQ से. दिस इज योर टू प्रूव. ऑलराइट, लिखो गिवन. ट्राइंगल PQR is given. PR is more than PQ is given. And PS bisects angle QPR is given. और bisect का मतलब है ये दो सेम. QPS RPS सेम. Therefore, QPS is equal to RPS because of bisector thing. To prove, it's clearly given PSR more than PSQ. Angle PSR more than angle PSQ. Step number 1. PR more than
पी क्यू गिवन इन ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन से ट्राइंगल की बात चल रही है वो भी लिखना जरूरी है। सो ट्राइंगल पी क्यू आर में पी आर बड़ा है पी क्यू छोटा, तो पी आर के सामने का एंगल पी क्यू आर इज बड़ा और पी क्यू के सामने पी आर क्यू छोटा। इसमें कोई रीजन मत लिखो तो चलेगा। तो दो साइड में एक बड़ी तो उसके सामने का एंगल बड़ा, तो मेरे को ये बड़ा एंगल मिल गया, ये छोटा एंगल मिल गया। इसको 1 करो, फिर लिखो एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी एस गिवन। इसको 2 कर दो, एड बोथ। बहुत सारे तरीके हैं सम करने के। एड बोथ, तो एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस इज मोर देन आएगा। ये इक्वल है और ये मोर देन है, तो मोर देन आएगा पी आर क्यू आर पी एस, पी आर क्यू आर पी एस, एंड स्टॉप हियर। Now, an important concept will come into picture which we have already learnt, and that concept is, in a triangle, if you extend one line, there is an exterior angle created, and that exterior angle is equal to sum of two interior opposite angles. मैंने तुमको स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट सिखाते समय सिखाया था, इंटीरियर एंगल ए प्लस इंटीरियर एंगल बी is equal to exterior angle C. Check your notebook, you will find this. Two interior angles is equal to third exterior angle. Check करो PQR plus QPS, ट्राइंगल PQS के अंदर PQR is this angle plus QPS is this angle. This two is equal to which exterior angle? This exterior angle PSR. This will become PSR more than PRQ plus RPS. दूसरे ट्राइंगल में पी आर क्यू, दिस एंगल, प्लस आर पी एस, द टॉप एंगल, दिस टू इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये द थर्ड एक्सटीरियर एंगल पी एस क्यू। To prove PSR more than PSQ, PSR more than PSQ, एक सेकेंड में सम सॉल्व हो गया। So it's a small sum. Pause and write down the entire thing, and now I'm going to explain it once again. So see carefully. एक तरफ दिया है that PS is angle bisector. So mind you, PS angle bisector का मतलब है this angle and this angle are same, which I am going to write angle QPS is equal to R
PS. फिर another thing given is this side is bigger than this side, तो इसके सामने का एंगल बड़ा होने वाला है, तो ये एंगल का नाम क्या है? PQS इज बिगर देन, छोटे के सामने छोटा एंगल PRS. Add it. QPS plus PQS is more than RPS plus PRS. और ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं. फॉर विच ट्राइंगल? आई विल शो यू. फॉर ट्राइंगल QPS. QPS ट्राइंगल के लिए एंगल QPS मतलब ये प्लस PQS मतलब ये इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल PSR मोर देन दूसरा ट्राइंगल PRS RPS plus PRS. These are two interior angles, and two interior angles are equal to the third exterior angle PSQ. Sum over. Sixth, show that all of line segments drawn from a given point not on it, the perpendicular is the shortest. बहुत इजी है. ये क्या है? ये कहाँ से आया? Show that of all line segments drawn from a given point not on it. So given point P, comma, P does not belong to line L, comma, PM perpendicular to L. बस. To prove PM is shortest. और ये मैंने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट बताया था, विच यू विल आइडेंटिफाई नाउ. मैंने हाँ ऐसा मैंने कहा था. पहले फिगर ड्रॉ करो, एक लाइन बनाओ L, ऊपर एक पॉइंट बनाओ ऑफ सेंटर P, P से एक परपेंडिकुलर लाइन, फिर एक टेढ़ी, एक और एक इस तरफ, और नाम दो PM जो 90 डिग्री है, NORS. तो व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से कि एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस जब मेजर करते हैं, एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस जब मेजर करते हैं तो 50 तरीके से डिस्टेंस मेजर हो सकता है. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस, this is also distance, this is also distance, and all the distances are different. This is 20, this is 16, this is 11, this is 8, this is 11, this is 15. Prove that the shortest distance is the one which is perpendicular. जो 90 डिग्री वाली लाइन है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है. देखो ये सब ऑब्ट्यूस एंगल है, बट ये 90 डिग्री है, और 90 वाली शॉर्टेस्ट होती है, वो प्रूव करना है. देयरफॉर वी हैव टू प्रूव PM इज द शॉर्टेस्ट. इट इज सुपर इजी. इन
triangle PMR, in triangle PMR, angle M is 90. Therefore PR is hypo. Therefore PR is longest side, क्योंकि वो प्रूव किया हुआ है hypo is the longest side. Therefore PR is more than PM. समझ में आया कुछ? मैंने कौन सा टॉपिक लिया, कौन सा ट्राइंगल चूज किया डिस्कशन में? PMR. और PMR में M90 है तो PR सबसे बड़ा है, और PR सबसे बड़ा है तो PR is more than PM. Choose another triangle and write the same story. In triangle PMS, angle M is 90, क्योंकि वो परपेंडिकुलर लाइन है. Therefore PS is hypo. Therefore PS is longest. Therefore PS is more than PM. तो वापस हाईलाइट करके दिखाता हूं. मैंने चूज किया ट्राइंगल PMS जिसमें M है 90, तो ये हाइपो है जो सबसे बड़ा है, तो PM is less than hypo. Therefore, similarly, no matter which triangle we choose, कोई भी ट्राइंगल चूज करो, PM is always smaller. PM is always smaller than hypo. Therefore, PM is less than PR, PM is less than PO, PM is less than PM, PM is less than PS. Therefore PM is shortest side. Hence proved that if PM is perpendicular to line L, then PM is shortest distance. Perpendicular line is the shortest distance. वो प्रूव हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन छोड़ के बाकी सारे हाइपो बिहेव करते हैं, और जो हाइपो बिहेव करता है वो सब बड़े होते हैं. Therefore we proved perpendicular line segment is the shortest. If PM is perpendicular, PM is shortest. Not very difficult. That's the end of this chapter. Good luck, study well, and do textbook sums properly. Thank you so much. Homework, सारे sums 2 बार.